हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज पर कार्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडिया नाउ हैज एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर अच्छा, प्लांट। ये वाओ। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले इसका इनागुरेशन हुआ था, पीएम ने ओके। किया था। और एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट, सबसे अच्छी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ लोग हो रहे हैं, अच्छा, स्विच इसका हो रहे हैं। इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया। हाँ, वाओ, ये न्यूज़ आई थी, गुड न्यूज़। आई नो दैट। बट ये बड़ी अच्छी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ द फ्यूचर और यही बेस्ट है। और इंडिया में तो हमने पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव देखे हैं इससे रिलेटेड, खासतौर लेकिन पर ये सोलर को इसकी लेके। स्पेशलिटी है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर हाँ, प्लांट है। तो ये बड़ी बात है। सो लेट्स सी कि इसमें और क्या क्या खास बात है और कहाँ है और क्या फ़ायदा होगा इसका। ओके, वी होप लेट्स ये वीडियो में स्टार्ट। सारा कुछ कवर किया होगा। लेट्स वीडियो लेट्स गो। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Asia's largest solar power plant in Madhya Pradesh today. Okay. Here's all you need to know about the power plant. The 750 megawatt ultra mega solar power plant, which is spread over 1590 acres of land, is located in the Rewa district of Madhya Pradesh. The solar park has been developed by Rewa Ultra Mega Solar Limited, which is a joint venture of Madhya Pradesh Urja Vikas Nikam Limited and Solar Energy Corporation of India. Central financial assistance of 138 crore rupees was provided to Rewa Ultra Mega Solar Limited for the development of the park. The project comprises of 3 solar generating units of 250 megawatts each, located on a 500 hectare plot of land inside a solar park with a total area of 1500 hectares. So, what sets this project apart from others? The Riva Ultra Mega Solar Power Project is one of the largest single site solar power plants in Wow. India and the world. The Riva Solar Project was the first solar project in the country to break the grid parity barrier. Grid parity is the point when the cost of the alternative energy becomes equal to or less than electricity from conventional energy forms like fossil fuels. The solar plant will generate 750 megawatt electricity and was established with an investment of 4500 crore rupees. Compared to prevailing solar project tariffs of approximately 4.5 rupees per unit in the early 2017, the Riva project achieved historic results. The first year tariff of 2.97 rupees per unit with the tariff escalation of 0.05 rupees per unit over 15 years and a levelized rate of 3.3 rupees per unit over the term of 25 years. This project will also reduce carbon emission equivalent to approximately 15 lakh ton of carbon dioxide every year. It is the first project to get funding from the World Bank and Clean Technology Fund in India. With this, the World Bank has funded its first solar park in the country. The process of reverse auction in bidding for projects was tried for the first time in India under this project. It comprises 3-tier payment security mechanism, which is another first in India. So who will be the power buyers? It has 2 off-takers, Madhya Pradesh Power Management Company Limited and Delhi Metro Rail Corporation. The Reva project has been acknowledged in India and abroad for its robust project structuring and innovations. Its payment security mechanism for reducing risks to power developers has been recommended as a model to other states. The project is also the first renewable energy project to supply to an institutional customer outside the state, that is Delhi Metro, which will get 24% of energy from the project, with remaining 76% being supplied to the state discoms of Madhya Pradesh. The Prime Minister tweeted about it saying, "This project adds momentum to our commitment of increasing renewable energy capacities by 2022. Clean energy projects now account for more than a fifth of India's installed power generation capacity. India has 34.6 gigawatt of solar power and aims to have 100 gigawatt of such capacity by 2022. The government believes the Reva project will help it achieve this target." ये हुआ है और एमपी को ये एनर्जी, एमपी की गवर्नमेंट ये एनर्जी 76% उसका पार्ट लेगी। सो दिस इज़ गुड। मेरे ख्याल से इससे, जैसे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की क्योंकि चार्जेस कम हो रहे हैं, तो मैं भी लोगों तक इसका बेस्ट पार्ट यही था मेरे ख्याल में, कॉस्ट एफिशिएंट होगा। बाकी इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो वो तो हैं ही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, जैसे 3 लाख मेगा टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा एक नुकसान है हमारी इन्वायरमेंट को, ख़ास तौर पे
ओजोन और गर्मी जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और फिर वो पूरा एक साइकिल है जो उससे नुकसान होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ्यूल बर्निंग से जितनी आप कंजम्पशन करते हो उससे जो इन्वायरमेंट को लॉस हो रहे होते हैं वो A to Z इस चीज़ से ख़त्म हो जाएंगे। इट इज़ वेरी गुड कि फॉसिल फ्यूल से हम साइड पर हो रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है और बड़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया की। और ओवरऑल पूरी खासतौर पे जैसे वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे इनिशिएटिव को बड़ा वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन चीज़ों की इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज से 20 साल पहले तक लोग जो एनवायरनमेंट का जो चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद लोगों ने इसकी सीरियसनेस को रियलाइज़ किया है, गवर्नमेंट्स ने भी, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी और जनरल पब्लिक में भी ये थोड़ा बहुत सा सारे वैसा ही- एग्रीमेंट्स ना इस पर चल रहे हैं, इन पे डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। उसकी बड़ी सारी रीजंस हैं। जब बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल रशिया, कनाडा, यूएस, इनके पास भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। हाँ। तो अगर इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेस हो जाते हैं। यूएस ने रिसेंटली एक दो Oppose एग्रीमेंट करते से हैं। एग्रीमेंट से उसको विड्रॉ भी करवा लिया था, इसलिए क्योंकि वो अपने कोल रिजर्व्स को यूज़ करना चाहते थे, कनाडा सिमिलरली और रशिया खास तौर पर। तो ये हैं बड़े जाइंट कंट्रीज हैं, इनके बगैर कोई एग्रीमेंट वर्ल्ड वाइड लेवल पर पॉसिबल भी नहीं है। तो इनकी जो कंसेंट है ना इनका, वो बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्रीमेंट्स में। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जैसे यूएस ने रिसेंटली किया और बाकी कुछ कंट्रीज में हैं जो अभी भी अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ को एज ए वोल पूरी वर्ल्ड की प्रायोरिटीज़ के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं इस चीज़ को लेके, जिसका नुकसान अल्टीमेटली सबको होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज से इफेक्ट तो हर कोई होगा अल्टीमेटली अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया। बट ये बड़ी बात है, अगर आप नीचे कंट्री के लेवल तक आ जाएं कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली ये जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बड़ी कम है, जिसकी वजह से ये सबसे अच्छा part प्राइसेस है। बड़ी नीचे आ जाती हैं आपकी। जैसे उन्होंने बताया अभी कि आप 4 से 0.5 तक ये जा रहा था, तो वो बेनिफिट फिर नीचे तक मिलता है, क्योंकि जो लोग कंज्यूमर्स हैं, आम पब्लिक कंज्यूमर होती है और कंपनीज आपकी होती हैं जो वो कंज्यूमर होती हैं जो जब लो प्राइस की जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूमर को मिलेगी तो वो तो बेनिफिट है। इसी तरह जो कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, उनको लो प्राइस जब ये कॉस्ट मिलेगी तो एक्सपोर्ट की उनकी कंपटीशन जो इंटरनेशनल मार्केट में करना है वो उसमें वो ज़्यादा बेनिफिट में चले जाते हैं एनर्जी प्राइसेस लो होने की वजह से। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंटरनली कंट्री के लेवल पर भी हो जाता है, जो जॉब्स ये जनरेट करेगा और ये सारी चीज़ें जो कि ऑब्वियसली बेनिफिशियल हैं ही। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी इंडिया की? मेरे ख्याल से तो सारों को बहुत पसंद आई होगी। अभी तो न्यूज़ पुरानी हो चुकी होगी, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन भी होगी और ये जो सारी मैंने बातें की हैं शायद ये और इससे भी बहुत ज़्यादा और सारी बातें इस पर हो चुकी होंगी। यार इस चीज़ को लेके और इस तरह के और भी इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं उनको लेके आप लोगों की क्या टेक है हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़।